تو یہ ہے کہ نماز ایسی عبادت ہے جسے اہل اسلام نے ایمان لانے کے بعد فرض اعظم کہا ہے۔ یہ ایسا فرض ہے کہ جس کو اہم الفرائض بھی کہا گیا ہے اور فرض اعظم ہے یہ، بلکہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں مسلک نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 110 سے زائد صحابہ کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے ترک کر دی وہ کافر ہو گیا۔ اگرچہ احناف اس کو سخت فاسق و فاجر کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے، لیکن تینوں ائمہ کرام حضرت امام مالک ہو، امام شافعی ہو یا امام احمد ابن حنبل ہو، یہ حضرات کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ جس نے نماز جان بوجھ کے ترک کر دیا وہ کافر ہو گیا۔ مزید فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے اس آیہ کریمہ کے ضمن میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اس آیہ کریمہ کے ضمن میں کہ نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ حالانکہ بات یہ کی جاتی ہے کہ حرام نہ کھاؤ حلال کھاؤ، ٹیڑے نہ چلو سیدھے چلو، یعنی جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو ایک دوسرے کی ضد بیان کی جاتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ تو یہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ نماز قائم کرو، بے نمازی مت بنو، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو اس کی تشریح کرتے ہوئے امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کرام اور تابعین کا یہ فتویٰ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا وہ کافر و مشرک ہو گیا۔ جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کر دیا وہ کافر و مشرک ہو گیا۔ اور اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ بیان کیا جاتا ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ذرا دھیان سے سنو۔ لوگ بہت مزے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملتا ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے، وقت نہیں ملتا ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں ذرا اندازہ تو کرو، صحابہ کرام اور تابعین کی اکثریت یہ بات کہہ رہی ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی وہ کافر و مشرک ہو گیا۔ اور اس کی تشریح کیا کی جا رہی ہے؟ اگرچہ احناف اس کو سخت فاسق و فاجر کہتے ہیں، لیکن اندازہ تو کرو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی تشریح یہ کی جا رہی ہے کہ انسان نماز کیوں نہیں پڑھتا، نماز کیوں ترک کرتا ہے؟ کبھی کھیلتے کھیلتے نماز ترک کرتا ہے، کبھی کھاتے کھاتے نماز ترک کرتا ہے، کبھی دکان پہ بیٹھے بیٹھے نماز ترک کرتا ہے، اللہ اکبر، کبھی دوسرے کاموں میں نماز ترک کرتا ہے۔ تو شرک کی وجہ کیا ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ میں پھر کہتا ہوں اگرچہ احناف یہ بات نہیں کرتے، تعویل کرتے ہیں، مگر اس کی تشریح کیا ہو رہی ہے کہ دکان ایک طرف بلا رہی تھی اور اللہ اپنی طرف بلا رہا تھا، غذا اپنی طرف بلا رہی تھی، اللہ اپنی طرف بلا رہا تھا، دنیا کے کھیل کود اپنی طرف بلا رہے تھے، اللہ اپنی طرف بلا رہا تھا۔ تم نے خدا کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی طرف اپنا رخ کیا۔ اب بتاؤ اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر شرک کیا ہے؟ اگرچہ ہم بے نمازی کو مشرک نہیں کہتے، لیکن یہ صحابہ کا فتویٰ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں مجھے بتاؤ اللہ اکبر کہ نماز ترک کرنے والے کے لیے کیا فرمایا اللہ کے حبیب نے؟ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اس کا لغوی ترجمہ یہ ہے کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر ترک کیا وہ کافر ہو گیا۔ ایک دن میں 5 وقت نمازیں ترک کرنے کے بعد اپنے ماتھے پر شکن بھی نہیں آتا، دکان کی محبت میں نماز جا رہی ہے،
कारोबार की मोहब्बत में नमाज जा रही है, बाल बच्चों की मोहब्बत में नमाज जा रही है, दोस्त अहबाब की मोहब्बत में नमाज जा रही है। अल्लाह के हबीब सादिक व मज़दूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, वो फक़द कफर, वो काफिर हो गया। अब जरा सोचे तो सही, हमें एहसास है कि वो फुला पर फुला ने फतवा दिया है, बेनमाजी होकर हम कहते हैं फुला पर फुला ने, तुझ पर रसूलुल्लाह का क्या फतवा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे लिए क्या कहा है? अगरचे अइम्मा अहनाफ इसमें जो है वो तावील करते हुए कहते हैं कि जिसने नमाज जानबूझ के तर्क कर दिया उसने काफिरों जैसा काम किया, या वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। लेकिन अल्लाह न करे मुसलमानों, अगर तावील के मुताबिक फैसला न हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऐन अल्फाज के मुताबिक फैसला हुआ तो अंजाम क्या होगा? इसलिए कि जो कुफ्र पे मरा उसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है, और वो भी किस तरीके से जहन्नम है? अल्लाह अकबर, उसको जहन्नम की पेटियों के अंदर बंद करके आग के अंदर हमेशा के लिए रखा जाएगा। और फरमाया गया सबसे बदतरीन अजाब अगर जहन्नम में किसी को दिया जाएगा तो वो बेनमाजियों को दिया जाएगा। आप सोचते होंगे कि इमाम अहनाफ तो तावील करते हैं, लेकिन अहनाफ भी आखिर में वहीं पर पहुंचते हैं जो सब कह रहे हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाते हैं, जो नमाज में सुस्ती और गफलत करता है, मुझे डर है कि जब मरेगा तो काफिर होकर मरेगा, मरने से पहले उसका ईमान उससे छीन लिया जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा सोचो तो सही। इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ में नकल करते हैं कि जो बिला उज़्र शरई रुकू को दुरुस्त दुरुस्त सही सही न करे, पीठ को सीधी न रखे, डर है कि जब मरेगा तो काफिर होकर के मरेगा। जब रुकू, नमाज पढ़ने वाला रुकू सही न करे, नमाज में चोरी करे, उसके कुफ्र पर खात्मे का डर है। तो जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ते उनका अंजाम क्या होगा? क्या हमारे जिस्म में इतनी ताकत है, हमारे जिस्म में इतनी कुव्वत है कि हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके? अपना हाल तो ये है, मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या हमने रसूल पाक मुस्तफा करीम गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नहीं सुना? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 99 सांप मुसल्लत फरमाएगा, 99 सांप, और उनमें से एक सांप की कुव्वत और ताकत का हाल ये है कि अगर वो किसी पहाड़ पे डंक मार दे तो पहाड़ उसके डंक की वजह से रेजा रेजा हो जाए। एक सांप अगर पहाड़ पे डंक मारे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। 99 सांप मिल करके उस एक मुर्दे को डसेंगे तो उस वक्त उसका अंजाम क्या होगा, उसकी कैफियत क्या होगी? कहां जाएगी दुकान, कहां जाएगा मकान, कहां जाएगा कारोबार, कहां जाएगा अल्लाह अकबर दोस्तों का रिश्ता, कहां जाएगा बीवी बच्चों का रिश्ता? बेवफा दुनिया के लिए अल्लाह की इबादत से मुंह फेरने वालों को कम से कम यहां तो इबरत होनी चाहिए। और यहां तक इरशाद फरमाया गया, दिल के कानों से सुनो, अगर कील ठोकते वक्त हथौड़ी उंगली पर लग जाए तो इन उंगली अगर पिस जाती अपने हाथ की हथौड़ी से, वो हथौड़ी जिससे हम कील ठोक रहे हो और अपने ही हाथ से अपनी उंगली पर हथौड़ी पड़ जाए तो इंसान कितना बेचैन और बेकरार होता है। सुनो सुनो, अल्लाह के हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दिया उसको 80,000 साल तक के जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। फज्र की नमाज बिस्तरों में तर्क करने वालों, गपशप करते हुए, मोबाइल खेलते हुए, गेम खेलते हुए नमाज का वक्त गुजार देने वालों, जरा सोचो तो सही, 80,000 साल किसको कहते हैं? एक वक्त की नमाज में 20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता, 20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता। अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ी
उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है, और जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है उसका जहन्नम में जाना यकीनी है। यह हदीस कंजुल उम्माल की है। उसके बाद मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्दनाक फरमान सुनो। यह हदीस मुस्नद अहमद की है। आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई नमाज छोड़ देता है तो वो अल्लाह और उसके रसूल के जिम्मे से बाहर हो जाता है। यानी अब अल्लाह रसूल का कोई जिम्मा उस पर नहीं होगा। यानी अल्लाह उसके रसूल की इसकी शरह करते मुहद्दिसीन ने लिखा है कि क़यामत के दिन अल्लाह उसके रसूल का उसके साथ कोई वादा नहीं है। किसके लिए? जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी, अल्लाह उसके रसूल के जिम्मे से वो खारिज हो गया, वो बाहर हो गया। अफसोस, यहां तो नमाजें छूटती है, माथे पे शिकल तक नहीं आता। और सुन लो, जिसको कोई पनाह न दे उसको अल्लाह उसके रसूल की पनाह है, और जिससे अल्लाह उसके रसूल पनाह उठा ले, न वो दुनिया में महफूज है न वो आखिरत में महफूज है। आज उम्मत मुस्लिमा जिल्लत के अमीक गार में क्यों गिर रही है? आज उम्मत मुस्लिमा पर मुसीबतों के पहाड़ क्यों तोड़े जा रहे हैं? आज उम्मत मुस्लिमा दर दर की भिखारी क्यों हो गई है? आज उम्मत मुस्लिमा गमों से निढाल क्यों है? आज उम्मत मुस्लिमा तबाही के दहाने पर क्यों है? आज हमारी औलाद हमसे बेवफा क्यों है? आज हमारे बच्चे हमसे एतमाद क्यों खोए हुए हैं? मियां बीवी का प्यार लूट क्यों गया? घर घर में आग क्यों लग गई? उसकी वजह यह है तुम अल्लाह रसूल के जिम्मे से खारिज हो गए, इसलिए सारी बहारें रूठ गई। काश हम अल्लाह के घर को आबाद करते। हमने तो नमाज को एक रस्म समझ करके छोड़ दिया, लेकिन पता क्या था कि जिस नमाज को छोड़ देंगे, अरे जब एक वक्त की नमाज को छोड़ने के बाद कुदरत का दस्ते रहमत तुम्हारे सरों से हट जाता है, तो जो सारी जिंदगी कभी मस्जिद में ना आए, और जो अगर आए भी तो हफ्ते में एक मर्तबा सिर्फ 2 रकात पढ़ने के लिए आए, उन लोगों का अंजाम क्या होगा? जिसका सहारा कुदरत बन जाए, अगर वो अबाबील भी हो, नन्नी नन्नी अबाबील, तो वो हाथियों को तबाह करती थी। कुदरत जिस पे दस्ते रहमत रख दे, वो चूटी भी हो तो वो 3 मील के फासले की आवाज सुनती और देखती नजर आती है। और कुदरत अगर किसी से दस्ते शफकत हटा ले तो फिर बड़े बड़े बादशाहों को तबाही और बर्बादी का मुंह देखना पड़ता है। हमने नमाज को समझा क्या? हम तो यही समझ बैठे कि ये तो वाइजों का डराना है, ये तो वाइजों का धमकाना है, ये तो खुतबा का मस्जिदों की तरफ बुलाना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत का फरमान है। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि सरकार ने फरमाया अल्लाह उसके रसूल के जिम्मे से वो बाहर है। यहां एक बात सी फर्ज करूं, क़यामत का मंजर जब हमें याद आता है तो पित्ता पानी होता है, लेकिन बस एक ही सहारा, एक ही उम्मीद हमारी धारस बंधाती है कि वहां बहुत कुछ है, लेकिन हुजूर का सहारा अगर है तो सारी मुसीबतें काफूर है। ये सबको पता है। पसीने में डुबकियां होगी, बदन पे कपड़े नहीं होंगे, सूरज इंसान के वजूद को झुलसा रहा होगा। इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ 1.25 हाथ का या 1.25 नेज़े का 1 हाथ का फासला होगा। ज़बानें सूख करके सीने पे लटक रही होगी, माँ बाप से रिश्ते टूट चुके होंगे, दोस्त दुश्मन बन चुके होंगे, ये सबको पता है। जमीन शोले उगल रही होगी, आसमान आग बरसा रहा होगा, कुदरत इतने गजब का इजहार कर रही होगी कि न इससे पहले न इसके बाद इस तरह के गजब का इजहार किया गया। यही सबको पता है, लेकिन एक उम्मीद बनती है। जहां अंबियाए किराम नफसी नफसी कहेंगे, वहां एक उम्मीद बनती है कि हमारा वसीला इतना मजबूत है क़यामत में कि कुदरत ने उसके साथ वादा किया है, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब तेरा रब तुझे इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। अब सोचो, जब किसी का सहारा काम ना आया तो आमिना का लाल काम आया। उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं, जहां गुजरा करे पिसर से पिदर को खबर ना हो। मगर सोचो, जब इंसान चला रसूल पाक के पास शफाअत की भीख मांगने के लिए,
या अपने हाथों की बेड़ियां कटवाने के लिए, या पैरों की जंजीरों से निजात के लिए, या हौज़े कौसर से जाम पीने के लिए? बोलो बोलो, वहां तो खलीलुल्लाह को भी उनकी हाजत होगी, मुझे और आपको क्यों ना होगी? सबको उनकी हाजत होगी, सब उनके मोहताज होंगे, सबकी रिसाई उन तक होगी, सिर्फ उनकी रिसाई खुदा तक होगी। अंबिया जिसकी बारगाह तक जाकर रुक जाएंगे, वो क़यामत के दिन बारगाह रिसालत माब होगी। मगर सोचो, गौर करो, उस मंजर को जहन में लाओ, न माँ काम आए, न बाप काम आए, न भाई काम आए, सारे रिश्ते जहां तारे अनकबूत की तरह बिखर जाए, मकड़ी के जाले की तरह बिखर जाए, वहां पर एक सहारा है, आमिना के लाल का, अब्दुल्ला के लख्त जिगर का, शाफी यौमुन नुशूर का। हम भी जाकर के खड़े हो, हम पर भी निगाहे करम करना। अल्लाह न करे अगर उस बारगाहे अर्श मकाम से, उस बारगाहे गैरत वाला से ये जवाब मिल जाए, क्या तूने मेरा फरमान न सुना था कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दिया वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया। आज तेरे साथ मेरा कोई वादा नहीं। अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए कि उस बारगाहे गैरत मकाम से ये जवाब मिले। आप मुझे बताएं, अगर वहां से ये जवाब मिल गया तो किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? शफाअत की भीख कहां से तलब करोगे? उस दिन तो सब के सब कह रहे होंगे रब्बे नफ्सी नफ्सी, रब्बे हबली तो सिर्फ एक ही की जबान पे होगा। और उस रसूल पाक ने फरमा दिया, और सुनो हुजूर जहां रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह की मखलूक में उनसे ज्यादा गैरत वाला कोई हो नहीं सकता। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत कहते गजब से उनके खुदा बचाए। उनकी शाने गैरत को भी दिमाग में रखना। बिस्तरों में नमाजें तर्क करने वालों, एसी की ठंडक में नमाजों को छोड़ने वालों, लड़कियों के कंधों पे हाथ रख के दरिया के किनारे बैठकर मेरे अल्लाह की इबादत के वक्त अय्याशी करने वालों, दुकान और मकान की मोहब्बत में मेरे रब के सजदों को जाय करने वालों, मेरे नबी की गैरत ये है, हुजूर कहते हैं खुदा की मखलूक में मुझसे ज्यादा कोई गैरत वाला नहीं है। अगर उन्होंने इजहार गैरत किया, किसके चौखट पे जाओगे? कहां हाथ फैलाओगे? कहां जाकर के दुआई दोगे? खुदा की इज्जत की कसम, जहां मां काम ना आए उनका सहारा काम आए। आज हमने नमाज को यूं छोड़ दिया कि हमारे कानों पे जू तक नहीं रेंगती, नमाजें तर्क होती। खाते खाते, खेलते खेलते, क्रिकेट देखते देखते नमाजें छोड़ते, ये शॉट ना छूट जाए इसलिए नमाज छूट जाए। और याद रखो, एक नमाज छोड़ दी, उसके बदले में पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ते रहोगे, उसकी फजीलत नहीं मिलेगी जो छूट गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते फजर की सिर्फ 2 रकअत पूरी दुनिया और माफिया से बेहतर है। जब फजर की 2 रकअत सुन्नत की बेहतरी का ये आलम है, तो फर्ज की शान का आलम क्या होगा? बल्कि 2 रकअत को तो जन्नत पर भी तरजीह दी गई। मौलाए कायनात फरमाते अगर मेरी मर्जी पे छोड़ दिया गया कि जन्नत में जाओगे या 2 रकअत अदा करोगे, तो मैं जन्नत पर 2 रकअत को तरजीह दूंगा, क्योंकि जन्नत में मेरी खुशी है, जन्नत और 2 रकअत में मेरे यार की खुशी है। और हमने तो रकअतें छोड़ दी। मस्जिद में ऐसा लगता है कि जैसे माज़ अल्लाह कोई हम पर डंडे बरसा रहा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान और सुन ले, इसको शोबुल ईमान के अंदर बयान किया गया है। आका इरशाद फरमाते कि जिसने नमाज छोड़ दी उसका इस्लाम में कोई हिस्सा ही नहीं है, कोई हिस्सा उसका नहीं है इस्लाम में। अल्लाह के हबीब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो नमाजों की पाबंदी करेगा क़यामत के दिन नमाज उसके लिए सनद होगी, उसके लिए हुज्जत होगी। और जिसने नमाज को छोड़ दिया, न उसके लिए कोई सनद है न कोई हुज्जत है, उसका ठिकाना कहां है? वो हामान, कारून और उबई बिन खलफ के साथ जहन्नम में जाएगा। किन के साथ? नमाज छोड़ने वालों का। बहुत आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये तो वीती अकीमिस्सलाह की नमाज कायम करो। जो नहीं पढ़ते उनका ये हाल है। अब जो पढ़ते हैं, कुरान कहता है आगे
लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए, या नमाज कायम कर मेरी याद के लिए। अब जो पढ़ते हैं वो खुश हो रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते हैं। लेकिन एक बात यह है, एक नमाज वो है जो तिजारत है और एक नमाज वो है जो इबादत है। अब हम कौन सी नमाज पढ़ते हैं? तिजारत करते हैं नमाज पढ़ के या इबादत करते हैं? पहली बात, जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं नमाज पढ़ेंगे तो रोजी में बरकत होगी, नमाज पढ़ेंगे तो मेरी मुसीबत दूर होगी, नमाज पढ़ेंगे मेरी बेटी को अच्छा रिश्ता आएगा, नमाज पढ़ेंगे अल्लाह औलाद अता करे। ये सब मिलता है नमाज पढ़ने से। लेकिन नीयत अगर ये है तो फिर ये तिजारत है, ये इबादत नहीं। अगर नमाज से मुसीबतें दूर होती तो जनाब यूसुफ ने ये नीयत क्यों नहीं की नमाज पढ़ते वक्त कि मिस्र के कैद खाने से निजात मिल जाए? अगर नमाज से बीमारियों को शिफा मिलती है, जरूर मिलती है। जनाब अय्यूब ने नमाज के वक्त ये नीयत क्यों नहीं की कि मर्ज से शिफा मिल जाए? अगर नमाज ही से औलाद मिलती है और बेशक मिलती है तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र तक ये नीयत क्यों नहीं की नमाज पढ़ते वक्त कि मुझे बेटा मिल जाए? ये तो हो सकता था, लेकिन इस नीयत से नमाज नहीं पढ़ी गई। जिसने अपने मफाद की नीयत से नमाज पढ़ी वो नमाज तिजारत है, वो इबादत नहीं है। वही नमाज इबादत है जो अल्लाह की याद के लिए पढ़ी जाए। जिसमें अल्लाह की याद ना हो वो नमाज ही नहीं है। जो नहीं पढ़ते उनका तो रोना है, जो पढ़ते उनका तो दोहरा रोना है कि अल्लाह की याद कब आती है नमाज में। मैं ये नहीं कहता, देखो नमाज जिस नीयत से पढ़ोगे वो मिलेगा। शक्कर के लिए पढ़ी तो मिल गई शक्कर, लेकिन फिर माने का शक्कर के लिए नहीं पढ़ना, खुदा को पाने के लिए पढ़ना। हैरत है, इतनी बड़ी करेंसी देकर इतनी छोटी चीज खरीदे क्यों? इतनी बड़ी करेंसी देकर इतनी छोटी चीज खरीदे क्यों? अरे नमाज के बदले में रोजी क्यों? नमाज के बदले में औलाद क्यों? जब नमाज में खुदा मिलता है तो खुदा को क्यों ना पाए? जब वो मिलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। करेंसी देके इतनी छोटी सी चीज खरीद के ये खसारा नहीं है तो और क्या है? यहां वक्त में बहुत किल्लत है। हमारे किबला हुजूर अमीर मोहतरम का मुझे हुक्म है कि 11:35 तक अपनी गुफ्तगू खत्म करना है, लेकिन बात यहां उठी एक आ गई तो मैं आपसे अर्ज करूं, नमाज जिस नीयत से पढ़ोगे, जिस नीयत से पढ़ोगे वो मिलेगा, जिस नीयत से नमाज पढ़ोगे वो मिलेगा। या सिर्फ एक मुख्तसर इशारा देना चाहता हूं, अल मलफूज में भी इसका तस्करा मौजूद है, जिसको अपने अल्फाज के जामे में अर्ज करूं। बात यह है कि औरंगजेब आलमगीर का नाम आपने सुना होगा। उनके दौर के अंदर एक बहरूपिया आपके पास आया और आने के बाद कहने लगा, औरंगजेब तेरे बाप दादा के दौर में मेरे बाप दादा बहरूपियापन करते थे और बड़ी बड़ी तनख्वाहें पाते थे। उसने कहा मगर मेरे दरवाजे पर तो ऐसे लोगों की बेहाजत जो है वो बेउकत लोगों की, गैर जरूरी लोगों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बहरूपिया की क्या जरूरत? तो कहा औरंगजेब हमारा फन है कि हम रूप बदल कर आते तो कोई नहीं पहचानता। कहा ठीक है, अगर बात यही है, अगर तू रूप बदल कर आया और मैं न पहचान सका तो जो मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा। वो बहरूपिया गया, चंद दिनों के बाद रूप बदल करके आया, औरंगजेब ने पहचान लिया, फिर रूप बदल कर आया, फिर पहचान लिया, फिर रूप बदल कर आया, फिर पहचान लिया, फिर वो आना छोड़ दिया। औरंगजेब को एक मुहिम दरपेश थी और औरंगजेब की आदत थी कि वो जब भी किसी बड़ी मुहिम पर जाते तो किसी अल्लाह वाले से दुआ करवाते। अब आप सोचेंगे कि हम अल्लाह वाला कहां ढूंढे? आसान सा मसला है, आप जिस मुत्तकी मोमिन को अल्लाह वाला समझकर दुआ कराएं वही आपके लिए अल्लाह वाला है। इसलिए कि फिर खुदा उसको नहीं देखेगा, खुदा आपके हुस्न जन की लाज रखेगा। ये बहुत बड़ा उन्वान है, इसको बहुत खोला जा सकता है, लेकिन आज इसका वक्त नहीं कि हुस्न जन ने किसको क्या बना दे। सिर्फ एक इशारा इस पर, एक शख्स अपनी बीवी से लड़ करके निकला घर से और वो शहर से भागना चाहता था, बीवी उसकी बहुत सताती थी, भागना चाहता था वो बीवी से निकल करके, और फिर पूरी रात उसने बगदाद के बाहर जो है वो वक्त गुजारा। ऐसे में एक शख्स पीर को ढूंढता ढूंढता खूब परेशान था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, उसको इशारा मिला
शहर बगदाद में जो पहला बंदा दाखिल होगा वही तेरा पीर होगा। इत्तेफाक से ये जाके गेट पे खड़ा हो गया। उस वक्त दरवाजे होते थे, शहर पना होती थी। जैसे ही दरवाजा खुला तो ये बीवी से लड़ झगड़ करके मुसीबत से निजात पाने के लिए अपना गांव छोड़ करके बगदाद में आया। जैसे इसने शहर में कदम रखा, इसने पैर पकड़ लिया, पीर साहब मुरीद कीजिए। कहा ये मुरीदी क्या, मुझे नहीं पता। पीर क्या होता है मुझे नहीं पता, ये नई बला में तू मुझे गिरफ्तार मत कर, बड़ी मुसीबत से निकल के आ रहा हूं। उसने कहा कि नहीं, मुझे किसी अल्लाह वाले ने कहा है कि जो पहले बगदाद में दाखिल होगा सुबह के वक्त वही तेरा पीर होगा। बस उसने कहा मैं तो पैर नहीं छोड़ूंगा। ऐसे में जनाब खिज़्र तशरीफ लाए, फरमाया कि इसके हुस्न जन की वजह से अल्लाह ने तुझे साहिब हाल बना दिया। ये भी चीज है, मोमिन के हुस्न जन की लाज खुदा रखता है। तो औरंगजेब की आदत थी कि वो जाते थे और दुआएं करवाते थे। अब निकले परेशान, लेकिन कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जहां दिल मुतमईन हो। लोगों ने आकर के कहा औरंगजेब बहुत बड़े अल्लाह के वली हमने देखे, बस नमाज नमाज नमाज, इबादत पर इबादत, इबादत पर इबादत। औरंगजेब ने बहुत तोहफे ताइफ सजाए, घोड़े लिए, खच्चर लिए और फौज फाटे के साथ शान के साथ वहां पहुंचे। तो जैसे उसने औरंगजेब को देख लिया कि आ रहे हैं, उसने मजीद नमाज पे नमाज शुरू कर दी। औरंगजेब ने जूते दूर उतारे और जा करके कहा कि जिसके लिए इबादत करे उसी का वास्ता 2 जुमले मुझसे बात कर ले। औरंगजेब गए, घुटने टेक करके कहा कि बहुत बड़ी मुहिम दरपेश है, दुआ कर दे। औरंगजेब को घुटने टेक कर अपने सामने देखा तो जैसी सर की पगड़ी हटाई और कपड़े तब्दील किए तो कहा पहचाना कौन है। औरंगजेब ने कहा कि अब पहचाना, पहले नहीं पहचाना था, इसलिए कि मुझे पता भी नहीं था कि लिबास नमाज में भी कोई बहरूपिया हो सकता है, लिबास दीन में भी कोई बहरूपिया हो सकता है, बहैसियत बंदगी करते हुए भी कोई बहरूपियापन कर सकता है। मुझे इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन चूंकि मेरा वादा है मैं तुम्हें ना पहचान सका तो मुंह मांगी कीमत दूंगा। बोलो मांगते क्या, मांगो क्या मांगते हो। आज सल्तनत भी मांगोगे तो दे दूंगा। उस दिन उस बहरूपे को एहसास हुआ और वो रो करके कहता है आज तुझसे कुछ नहीं मांगना, इसलिए कि आज मुझे फलसफे नमाज समझ में आ गया। औरंगजेब को धोखा देने की नीयत से मैंने नमाज पढ़ी तो वक्त का बादशाह घुटने टेक कर मेरे पास खड़ा हुआ है। वक्त का ताजदार, अखंड भारत का बादशाह अपने घुटनों को टेक करके मेरे पास खड़े होकर के दुआ की गुजारिश कर रहा है। औरंगजेब को धोखा देने की नीयत से नमाज पढ़ी तो वक्त के ताजदार ने घुटने टेक दिए। अगर खुदा की रजा के लिए पढ़ता तो अल्लाह मकाम क्या अता फरमा। मैंने अब तुझे धोखा, तुझसे कुछ नहीं लेना, अब तो यार के लिए इबादत करनी, अब तो रब के लिए इबादत करनी है। अकीमिस सलात अला ज़िक्री, जिस नियत से नमाज पढ़ोगे, तो जब नमाज अल्लाह के लिए पढ़ोगे तो अल्लाह मिलेगा। और हम किस लिए पढ़ते हैं, कोई तारीफ करेगा, किस लिए पढ़ते हैं, रोजी रोटी मिलेगी। ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, ये बहुत छोटी चीजें जिसको नमाज के एवज में मांग रहे हो। 2 रकअत नमाज की कीमत जानते हो? एक मर्तबा इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह गुजर रहे थे, देखा कि वक्त के बादशाह की बड़ी खूबसूरत कनीज, जिसकी खिदमत में कई कनीजें थी, गुस्ल करके दरिया से जा रही थी। उसे अपने हुस्न पे बड़ा नाज था। हजरत मालिक ने देखा, मालिक इब्ने दिनार कहते हैं क्या तेरा मालिक तुझे बेचेगा? उसने गर्दन को झुरझुरी दे करके कहा मेरे मालिक से तू ही बात कर ले, इसलिए कि मालिक की सबसे चहीती कनीज हूं। पीछे पीछे गए, अल्लाह वाले थे, कोई खौफ नहीं था। दरबार में पहुंचे, कहा कि बेचेगा इसको? उसने कहा तुम खरीदोगे मालिक बिन दिनार? कहां, कितने में? कहा 2 खजूर, सूखी हुई खजूर होती है ना, 2 छुआरे, उसके बदले खरीदूंगा। कहा ओश कर मालिक, इतनी हसीन है ये मेरी कनीज और तू 2 छुआरे में, का इस बहुत बड़ी कीमत लगा दी, इससे ज्यादा हसीन कनीज तो मेरे पास, और इसमें तो ऐब ही ऐब है। का इसमें भी कोई ऐब है? कहा अगर ये मुंह साफ ना करे तो मुंह से बदबू आए, है कि नहीं ऐब? कहा बिल्कुल। गुस्ल ना करे तो पसीने की बदबू आए, दूसरा ऐब। तीसरा ऐब, मर जाएगी तो तुझे गम दे जाएगी, मर जाएगी तो तुझे जिंदगी का गम दे जाएगी, ये तीसरा ऐब है। और चौथा ऐब ये है
कि तू मर जाएगा तो किसी और से दिल लगाएगी। 4 ऐब है। अगर कोई ऐसी भी है कि जिसमें यह ऐब न कहा, उसे मुंह साफ करने की जरूरत नहीं, हर दिन उसकी मुंह की खुशबू बढ़ती, वो मेरी कनीज है। उसे नहाने की आदत नहीं, वो ना नहाए तो भी उसकी खुशबू बढ़ती जाए, वो मेरी कनीज है। और वो जिसको मिल जाए तो वो भी नहीं मरती, और जिसको मिलेगा वो भी नहीं मरेगा। वो कौन है? तो कहा वो जन्नत की हूर है। तो उसकी कीमत क्या है? तो कहा जब सब सो जाए तो उठ करके 2 रकत नमाज अल्लाह के लिए अदा कर, उसकी कीमत ये 2 रकत है। ये नमाज है। हजरत जिब्रील अमीन ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप मेरी परवाज जानते हैं ना? हुजूर ने फरमाया हाँ। पलक झपकते जिब्रील जमीन पे आते हैं, पलक झपकते सिदरा पे जाते, इसकी ये परवाज है, जिब्रील है। फरमाया कि अर्ज किया कि आपका उम्मती जब 2 रकत पढ़ता है तो जन्नत में 70 साल तक भी अगर मैं उड़ता फिरूं तो उस 2 रकत पे उसको जितनी बड़ी जन्नत मिलेगी, मैं 70 साल भी उड़ उड़ करके उसका फासला तय नहीं कर सकता। जब 2 रकत की ये शान है तो पूरी जिंदगी की शान क्या है? लोगों ने नमाज को क्या, जब इतनी बड़ी जन्नत नमाज की बरकत से मिल सकते सिर्फ 2 रकत पर, तो दुनिया में घर नहीं मिल सकता। लेकिन बस बात यही, इम्तिहान यही है कि हम अल्लाह की याद, जिस नमाज में खुदा की याद भी ना आए, बोलो क्या हमारी नमाजों में खुदा की याद आती है? जिस नमाज में हम कभी मस्जिद के नक्श निगार देखें, जिस नमाज में हम लोगों के पैरों पे नजर रखें कि किसका पैर कितना टिक रहा है, जिस नमाज में हम लोगों के मखरज को उसूल पे परखें कि सही निकाल रहे कि नहीं निकाल रहे, जहां हम फन में डूबे हो वहां इबादत कैसे? क्या आपको नहीं पता? इमाम हसन बसरी एक मर्तबा हबीब अजमी की खानकाह में पहुंचे, अजमी नमाज पढ़ा रहे थे। हसन बसरी को ख्याल था पहले की जिंदगी बड़ी गुनाहों में थी और सही तौर पर वो फनून के साथ मखरज अदा नहीं करता। सही से मुराद इतना सही बस चाहिए कि तलफ्फुज अदा हो जाए, लहन भी नहीं चाहिए, और जली तो कतई नहीं चलेगा, वरना नमाज ही नहीं होगी। तलफ्फुज अदा हो जाए, कोई सी फन की जरूरत नहीं है, और अगर फन हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इजहार फन इबादत में ना हो। इसलिए कि जहां इजहार फन इबादत में हो तो फिर वो इबादत नहीं रह जाती, वो नुमाइश हो जाती है। इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह है, उलमा पीछे रहेंगे, फनकार आगे रहेंगे। कुरान समझने वालों को पीछे किया जाएगा और अच्छा कुरान पढ़ने वालों को आगे किया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं क़यामत की निशानियों में से एक निशानी, नमाज में इजहार फन हो रहा होगा। मैं फन का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन नमाज में तो आजिज़ी चाहिए। किसी ने हुजूर के पास कुरान पढ़ा, का कुरान तो पढ़ा, रोना कहां है? कुरान के नवाज़िमात में से रोना है, क्योंकि कुरान गमगीन लहजे में नाजिल हुआ है, इसमें गिना नहीं है। वहां तो आजिज़ी है, वहां तो इंकिसारी है, वहां तो रोना है, वहां तो आहे भरना है। तो इमाम हसन बसरी ने, जिसने दूध पिया था हज़रत उम्मे सलमा का, उम्मुल मोमिन, हुजूर के रज़ाई बेटे, सोचा कि पहले की जिंदगी और फिर बहुत फन नहीं जानता ये। नमाज मगरिब हो रही थी, नहीं पढ़ी। उसी रात खुदा का दीदार किया ख्वाब में, अस्की मौला मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे राजी हो जा। इरशाद हुआ, हसन मौका तो दिया था, हसन मौका तो दिया था, अगर तू उस मौके से फायदा उठाता तो मैं तुझसे राजी हो जाता, जो तू चाहता है। अर्ज़ किया कौन सा मौका? का मगरिब में, अगर हबीब के पीछे नमाज पढ़ लेता तो मैं तुझसे राजी हो जाता। इसलिए कि कुछ वो होते हैं जो जबान सीधी करके खड़े होते हैं, और कुछ वो होते हैं जो दिल सीधा करके खड़े होते हैं। और फिर इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवारिकुम इला अम्वालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम। न वो तुम्हारे चेहरे देखता है, न वो तुम्हारे माल देखता है, उसकी निगाह तो तुम्हारे कल्ब पर होती है, और कल्ब का ही ताल्लुक नमाज से। हुजूर फरमाते ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल कल्ब, जिसमें नमाज, जिस नमाज में दिल नहीं है वो नमाज ही नहीं है। क्या हमारी नमाज भी ऐसी है? बड़ी माजरत के साथ आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उनके सजदे सर के ऊपर भी नहीं जाते जो लोगों के लिए कीने और कपट दिल में लाते हैं, जो अनानियत दिल में लाते हैं। एक सजदा काफी है जन्नती होने के लिए, सिर्फ एक सजदा।
اقبال نے کہا تھا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ جس سے روئے زمیں کانپ جاتی تھی اس کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. ترس رہے ہیں ان سجدوں کو منبر محراب جو سجدے کسی کو بایزید بناتے تھے, جو سجدے کسی کو سید الطائفہ بناتے تھے, وہ سجدے جو کسی کو اللہ اکبر معروف کرخی بناتے تھے, وہ سجدے جو کسی کو غوث الاعظم دستگیر بناتے تھے, وہ سجدے جو کسی کو معین الدین اجمیری بناتے تھے. کہاں تو سجدوں سے کوئی غوث و خواجہ بن گیا, ساری زندگی نماز پڑھتے رہے سچے بھی نہ بن سکے. یہ اپنی نماز ہے. نماز تو کہہ رہی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اور یہاں نمازی سود کھا رہا ہے, یہاں نمازی لوگوں کا پیسہ لے کر کے بھاگ رہا ہے, یہاں نمازی کسی کے ساتھ زنا کر رہا ہے. نماز ہوئی تو پھر یہ کیوں ہوا؟ پتا چلا نماز ہی نہ پڑھی. نماز میں تو رونا تھا, اتنا خوف تھا. امام زین العابدین پاک بار بار سنتے ہیں, واقعہ نہیں بتانا صرف اشارہ کرنا. نماز کے لیے صرف وضو کرتے تو ایسا لگتا کسی نے خون نچوڑ لیا, چہرہ پیلا پڑ جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ جس دربار میں جا رہے اس سے بڑا کوئی دربار نہیں. یہاں تو واٹس ایپ کا بھی خیال ہے حالت نماز میں, وہاں تو خود کا بھی خیال نہ تھا. بہت اچھی بات یاد آتی ہے, اگرچہ اس کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہے لیکن بات عبرت کی ہے. ایک دن مجنو دھن میں جا رہا تھا, اپنی دھن میں لیلا لیلا کرتے کرتے جا رہا. حالانکہ مجنو ایک مجذوب کا نام ہے, مجازی عشق میں اپنے آپ کو چھپا لیا. بعض صوفیہ اور عارفین نے یہ بھی کہا کہ وہ لیلا کوئی وجود ہی نہیں ہے, وہ لیلا کوئی وجود ہی نہیں ہے. وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی ایسی تکرار کی اس شخص نے کہ لا الہ کو لوگ لیلا سمجھنے لگے. کہا کچھ سمجھا کچھ, ورنہ وہ تو لا الہ پڑھتا رہا اور لوگ لیلا سنتے رہے. یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے, لوگ کہتے کیا ہیں سنتے کیا ہیں. بہرحال آج تک بیچارہ بدنام ہی رہا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. وہ حضرت قیس تھے, وہ مجذوب تھے, بہرحال جا رہے تھے اپنی دھن میں. ایک نمازی شاید میری طرح کوئی رہا ہوگا, وہ نماز پڑھ رہا تھا اور شاید غلط سلط مسئلے کسی قصہ گو سے سن رکھے ہوں گے کہ کوئی سامنے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. بس وہ گزرا سامنے سے, اس نے پکڑ کر کے جھنجھوڑ دیا, بدبخت میری نماز توڑ دی, خراب کر دی تو نے. مجنون نے سرد آنکھ کھینچ کر کے کہا کہ تو عشق حقیقی میں ڈوبا تھا, تجھے کیسے خبر ہوئی کہ تیرے قریب سے بھی کوئی گزرا؟ میں تو مجازی میں ڈوبا ہوا ہوں اور مجھے خبر نہیں کہ میں کس کے قریب سے گزرا. میں تو مخلوق کی محبت میں ہوں اور مجھے خبر نہیں کہ میں کس کے قریب سے گزرا, اور تو خالق کے دربار میں کھڑے ہو کر تجھے خبر کیسے ہے کہ کوئی تیرے قریب سے بھی گزرا. یہ بھی نماز ہے, یہ اپنی نماز. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس زوجہ محبوبہ محبوب رب العالمین ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نماز پڑھتے تو 1 میل دور تک کے ان کے سینے سے نکلنے والی آواز سنی جاتی. اللہ کے حبیب جب نماز پڑھتے تو آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی. ہمیں رونا کیوں نہیں آتا؟ بس اسی پہ بات ختم کرتا ہوں ٹائم کی پابندی کے ساتھ. ہمیں رونا کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ رونا اسی وقت آتا ہے جب محبوب یاد آتا ہے. ہمیں تو پوری نماز میں ثنا سے لے کر یا اللہ اکبر کی الف سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ہاں تک یاد ہی نہیں آتی. حالانکہ نماز یاد کے لیے ہے, یاد ہی نہیں آتی. بکری کا چارہ لانا یاد ہے, بچوں کو اسکول پہنچانا یاد ہے, ٹیوشن کی فیس کا ٹینشن یاد ہے. یار کی یاد ہی نہیں آتی. جس کے لیے نماز پڑھتے ہیں اس کی یاد ہی نہیں آتی. اپنی انانیت بھی یاد ہے, اپنے وجود کے کپڑے بھی یاد ہے, مسجد کا فرش گندا ہے, مؤذن کو ڈانٹنا یہ بھی یاد ہے, سب یاد ہے. اگر یاد نہیں ہے تو جس کے لیے نماز پڑھے وہ رب یاد ہے. جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز. ایک بت لانے والا مجرم ہے, دل کے نیا خانوں میں سینکڑوں بت جو سجا کر کے لایا ہے, اس کی نماز کیسے؟ شاید میں بہت اونچی بولنے لگا ہوں, لیکن بات چونکہ ہمارے برادر بزرگ نے مجھے یہ رہنمائی فرمائی تھی بلبلِ باغ مدینہ نے کہ آپ اس عنوان پہ بولیں,
लेकिन अगर थोड़ा सा सर पे से जा रहा हो तो माफ करें, लेकिन बात सच्ची सच्ची यही है, नमाज खुदा की याद के लिए। जिस नमाज में खुदा की याद नहीं वो नमाज नहीं। और जब खुदा याद नहीं आता, देखो कितनी भी थकन हो, अच्छा लोग नमाज में होते तो थके हुए क्यों होते? जब यार याद आता है तो थकन दूर हो जाती। एक बात, जब यार याद आता है तो आंसू बहते हैं, जब यार याद आता है तो बेचैनी और बेकरारी। ही तो मुनाफिकों की नमाज है कि वो सुस्त सुस्त नमाज पढ़ती, थके थके जी नमाज। ये मुनाफिकों की नमाज है जिनके लिए फरमाया कि वो जहन्नम के सबसे निचले तबके होंगे। मोमिन की नमाज तो यह कि तीर भी लगा हुआ है तो भी चाबुक दस्ती नहीं जाती, चुस्ती नहीं जाती। सर उस वक्त सजदे में जाता है कि जब 72 जख्म खा लिए हैं, उस वक्त भी चुस्ती नहीं जाती। और यह हाल यह है कि हमारी नमाज ही थकेजी हो रही है। क्यों? इसलिए कि यार याद नहीं आता। देखो परदेश में बीवी से प्यार किया है, मां से प्यार किया, बच्चों से प्यार किया, जब याद आएंगे तो रोना आएगा कि नहीं आएगा? कितने भी थके हो, नींद आंखों से उड़ जाएगी। तो अल्लाह वाले इसलिए नमाज में रोते थे कि इधर अल्लाह अकबर कहते थे और वो रब्बे अकबर याद आता था। बस अपनी बात का इख्तिताम करता हूं, हमारी नमाज ये है और असल नमाज ये है। नमाज का कम से कम दर्जा ये है, कम से कम दर्जा नमाज, जो नमाज है वाकई जो नमाज है उसका कम से कम दर्जा ये, कम से कम दर्जा कि खुदा तुझे देख रहा है, ये कम से कम दर्जा है। नमाज उसको कहते हैं, नमाज की डेफिनेशन ये है, उसका परिचय ये है, उसकी तारीफ और तारुफ ये है कि कम से कम नमाज का दर्जा ये है कि खुदा तुझे देख रहा है। और नमाज का दूसरा दर्जा ये है कि गोया तू खुदा को देख रहा है। और नमाज का आखिरी दर्जा ये है कि कान्नका की कैद उठ जाए और रब्बे अकबर का मुशाहिदा हो जाए। ये असल नमाज का मकसद है। अब इन तीनों में से हम किस दर्जे पर हैं? कम से कम इस पर भी नहीं है कि वो हमें देख रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अंता अबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, के इबादत इस तरह कर। अच्छा, इसमें हुजूर ने ये नहीं कहा कि नमाज इस तरह पढ़, बल्कि मैं इबादत इस तरह कर। इसका मतलब यह है कि अफजलुल इबादत को तो इसमें आधा ही आना है, दूसरी इबादतें भी इस तरह करो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। इसलिए ज़कात देते वक्त तो फोटो छपाने की फिक्र मत करो, रोजा रखते वक्त लोगों से खिराज वसूल करने की फिक्र मत करो, वो तुम्हें देख रहा है। दूसरा दर्जा यह है कि तुम उसको गोया तुम उसको देख रहे हो। और आखिरी दर्जा यह है आरिफीन का, सालिहीन का, अहले मुशाहिदा का। कान्नका की कैद हट जाती है और यार का जलवा सामने होता है। इसीलिए तो राबिया ने कहा, राबिया बसरी कहती है, जब अल्लाह अकबर कहती हूं तो जब तक रब्बे अकबर का जलवा नहीं देख लेती उस वक्त तक सना शुरू नहीं करती। जब तक सना की कबूलियत का मुश्दा नहीं सुनती हूं उस वक्त तक फातिहा शुरू नहीं करती। जब तक फातिहा की मुराद नहीं पा लेती उस वक्त तक फिर कोई दूसरी सूरत शुरू नहीं करती। आप गौर फरमाए, ये अहले मुशाहिदा की नमाज ये है। इसीलिए किसी ने कहा है, मिलता है क्या नमाज सजदे में जाके देख। क्या पता जिस दिन मोमिनों को सजदे की लज्जत मिल गई, जिस दिन मोमिनों को सजदे की लज्जत मिल गई, सर रखना तो जानेंगे लेकिन उठाना कभी नहीं जानेंगे। यहां तो 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला भी भारी पड़ता है, लेकिन जिनको लज्जत सजदा मिले पूरी पूरी रात उसमें गुजारते थे और हसरत से कहते थे रात छोटी बनाई तूने। क्यों? इसलिए कि लज्जत थी। बस एक एंड पर बात देखो, खाने 2 तरह के होते हैं, एक वो जिसकी लज्जत नहीं होती, एक वो जो लज्जत वाला होता है। जो बगैर लजीज खाना होता है ना, फीका, जिसमें कोई लज्जत और नहीं आती, तो आदमी 2 लुक़मे लेकर भी उकटाता है। और जिसमें लज्जत आती है तो पेट भर जाता है लेकिन आदमी हाथ नहीं खींचता, हल में मजीद की बात करता है। तो आज हम सजदे इसीलिए बार पड़ गए कि ये सजदे बेलज्जत है, ये बेलज्जत सजदे हैं। इन सजदों के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसकी नमाज जिसे गुनाहों से न बचाए ऐसी नमाज इंसान को खुदा से दूर कर देती है। ये बेलज्जत सजदे, ये बेसूद सजदे। और जब सजदों में लज्जत आती है तो फिर दिल कहता है जरा 2 बार और पढ़ दें,
फिर और पढ़ लें, फिर और पढ़ लें। हदीस पाक है, जो नमाज की लज्जत महसूस कर ले वो तमन्ना करता है कि अल्लाह सर मैंने मर्जी से रखा है, अब सर उठाने से पहले पहले इसी हालत में मौत अता फरमा। ये नमाज है, नमाज की बरकत है, लेकिन उन्वान इस पर पूरा नहीं होता, ये एक तवील उन्वान है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सबसे पहले मुझ बेअमल और गुनहगार को इसकी तौफीक नसीब फरमाए, और आप सबको अल्लाह हमें ऐसा नमाजी बनाए जो उसको पसंद हो। अल्लाह हमें ऐसा नमाजी बनाए जो मुशाहिदे की नमाज हो, जो उसके बेपर्दा होने वाली नमाज हो, जो उसकी जलवागरी को महसूस करने वाली नमाज हो। और गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आज मुझे हुबली में होना चाहिए था, लेकिन कहीं उस तरफ के लोग देख करके बदगुमान ना हो, तो मैं आज यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ कि मेरी वालदा हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी खिदमत के लिए मैं यहाँ एक हफ्ते के प्रोग्रामात कैंसिल करके यहाँ हूँ। तो चूँकि आज मरकज़ी इज्तिमा है, तो हमारे अहबाब का हुक्म था, हमारे बड़ों का, कि जब यहाँ है तो बयान कर दें। तो मैंने भी सोचा कि जिसके ज़िक्र से नूह की कश्ती को किनारा मिलता है, जिसकी कश्ती से अय्यूब को शिफा, जिसके नाम से अय्यूब को शिफा मिलता है, जिसके जिक्र से जनाब यूसुफ को निजात मिलती है कैद खाने से, चलो हम भी उनका जिक्र कर लेते हैं कि इसी के सदके अल्लाह मेरी वालिदा को शिफा अता फरमाए और शिफाए कामिला वो आज। आप लोग दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।